बार फिर से एक खास कार्यक्रम लेके मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और यह खास कार्यक्रम इसलिए खास है कि मैं सबसे पहले आपको विद्यालय एक दिखाने की कोशिश करूँगा। ढेलाघाट शाह बगीचा प्राथमिक विद्यालय और 1939 सन में यह स्थापित हुआ था इस विद्यालय का। और यह विद्यालय खास क्यों है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंत्री संजय किसान जो आज श्रम मंत्री है, उनका प्राथमिक जो शिक्षा शुरुआत हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था, इसी विद्यालय से हुआ था। और मैं थोड़ा इस विद्यालय के बारे में जानकारी आपको दूंगा, लेकिन एक चीज़ आज कहना चाहूँगा कि जब वह यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, जब उनका शिक्षा चल रहा था, तो इस विद्यालय का स्थिति कुछ और ही था। और मंत्री संजय किसान ने खुद अपने इनकम से, खुद अपने कमाई से इस विद्यालय को सुंदर करने का एक प्रयास किया है और मैं वह भी दिखाऊंगा। लेकिन एक विशेष व्यक्ति यहाँ मेरे साथ उपस्थित है और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि इस विद्यालय का शुरुआत कैसे हुआ और क्या क्या है इस विद्यालय का पुराना किस्सा या इतिहास। प्रथमे आपनाक स्वागतम जनाइছোঁ। আপোনাৰ এই বিদ্যালয় যিহেতু আমি জানিব পালোঁ 1939 চনত যিহেতু বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, গতিকে থুলমূলকৈ মই ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী কি মই অলপ জানিব বিচাৰিম। আমিতো 1965 পঢ়িছোঁ ইয়াতে। আমাৰ দেউতা আছিলে স্বৰ্গীয় জালিয়াম দত্ত, এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। তেতিয়া চনত আছিলে 58 নে 59 পৰা আছিলে ইয়াত। তাৰপিছত তেখেতে অকলে আছিলে, তেতিয়া এই বিদ্যালয়টোৱে ঘৰ আছিলে, কোম্পানী বনোৱা ঘৰ। তাৰপিছত তেখেতদিনত প্ৰায় 150 নে 54 তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছিলে। তেতিয়া আছিলে ক শ্ৰেণী, খ শ্ৰেণী, প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। তেতিয়া আগবেলা প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হয় আৰু পিছবেলা ক শ্ৰেণী আৰু খ শ্ৰেণী। আৰু এই বিদ্যালয়ৰ পৰাই বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই গ'ল। কেইবাজনো ডক্টৰ হ'ল, উকিল হ'ল, ভাল ভাল চাকৰিয়াল হ'ল। ডক্টৰ স্বৰ্গীয় দামোদৰ বৰুৱা, শ্ৰী পুণ্য বৰুৱা, দুজন ককাই ভাই, ডক্টৰ টংকেশ্বৰ বৰুৱা, ডক্টৰ হেমকান্ত বৰা, ডক্টৰ অঞ্জুমণি চেতিয়া, এই বিদ্যালয় পঢ়ি পেলাই ডক্টৰ হ'লগৈ। তাৰপিছত পেঙেৰী হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিলে স্বৰ্গীয় বল্লভ মণ্ডল, তেখেতৰ ভগ্নী ৰেণু মণ্ডল, পেঙেৰী হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ। আৰু ঢেলাঘাট এম ই স্কুলত হেডমাষ্টাৰ কৰিছিলে শ্ৰীযুত প্ৰদীপ চেতিয়া, এইখন ষ্টেট বলে পঢ়ি যোৱা। আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীত থাকে সাহিত্যিক, কবি, লেখক, লেখিকা, কেইবাখনো কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া ৰীতামণি বৰদলৈ, এইখন স্কুলৰ পৰাই পঢ়ি যোৱা। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া যেতিয়া ইয়াত শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল, সেই সময়ত আপোনাৰ দেউতাই আছিল নে? আমাৰ দেউতাই তেতিয়া পঢ়াইছিলে তেওঁলোকক। গোটেইখিনি ইয়াৰ মেক্সিমাম মানুহ আমাৰ দেউতাই পঢ়োৱা। এটা বস্তু আমি যিহেতু আপোনাৰ কথাৰ পৰা জানিব পালোঁ, এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে ভুল ধাৰণা থাকে বহু লোকৰ যে চাহ বাগানৰ যিসমূহ শিক্ষা অনুষ্ঠান, চাহ বাগানত যিসমূহ শিক্ষা অনুষ্ঠানত অকল চাহ শ্ৰমিকৰ কণ কণ শিশুৱে তাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু আপুনি যিহেতু যিখিনি কথা ক'লে আমি জানিব পালোঁ বহু লোক ইয়াৰ পৰা গৈ যথেষ্ট তেওঁলোকে সমাজত এটা তেওঁলোকৰ অৱদান গঢ়ি তুলিব সক্ষম হৈছে। এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী দীপশিখা, তাই স্কুলৰ পৰা পঢ়ি যোৱা। শ্ৰীযুত সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, তাৰমানে দেখিছোঁ, আমি সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ যে সৰুৰ পৰাই সি সমজুৱা যি কাম কাজ মানে গ্ৰাছ লেভেলৰ পৰাই সি কৰি ভাল পায়, খুব ভাল পায়। আৰু যিহেতু আমাৰ পিছপৰা বাগানৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত খাটিছে। আমি এটা সময় আছিলে প্ৰায় 97 মানত, 97, 98 তেনেকুৱা লাইনত, তাৰমানে বিশেষকৈ 14 নম্বৰ লাইনত যিটো গাঢ়া লাইন বুলি কোৱা হয়, তাতে তেখেতৰ ঘৰ। তাতে আমি নাইট স্কুল খোলা হৈছিলে। সেই নাইট স্কুলত তাৰমানে বহুত দিন নিজেও পঢ়াইছিলে, আছমান সোণা ডাঙৰীয়া নিজেও ক্লাছ কৰিছিলে, লগতে আমি নিজে পঢ়িছিলোঁ সেইখনত। আমাৰ সকলোৰে গৌৰৱ, আদৰ্শ হিচাপে আমি মানি লৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ মানে তেখেত আদৰ্শ, তেওঁক দেখিয়ে আমাৰ পিছপৰা সমাজৰ যি ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ মানে উৎসাহ দিয়ে। আমাৰ ভগৱান স্বৰূপ, তাৰমানে যে দেখিলেও তাৰমানে হয় এইখন বিদ্যালয়ত সঞ্জয় কিষাণ পঢ়ি গৈছে, তেওঁৰ নিচিনা হ'ব লাগিব, আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে একদম
আমাক যিকোনো অনুষ্ঠান ইয়াত হয় সেই অনুষ্ঠানত আমাক উৎসাহ দিয়ে আৰু সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে সেইবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰে আজি আদৰ্শ হৈ পৰিছে হয় 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 এটা সময় আছিলে তেখেত নিজেই আমাৰ ঢেলাঘাট চাহ বাগিচাত যিটো কেণ্টিন আছে কেণ্টিনত নিজেই বাচন বৰ্তন ধুই কেণ্টিনো এটা সময়ত চলাইছিলে और जैसा कि मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं मंत्री संजय किसान जिस प्राथमिक विद्यालय में जिस प्राथमिक विद्यालय शिक्षा उन्होंने लिया था मैं उस विद्यालय का दृश्य दिखाना चाहूँगा और बस कुछ ही समय बाद इस विद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है और शुभारंभ का है तो गलत होगा पहले से ये विद्यालय था लेकिन उसको सुंदर करने का एक प्रयास किया है मंत्री संजय किसान ने और उनकी पत्नी मेरे साथ उपस्थित है और थोड़ी उनसे भी मैं बातें करना चाहूँगा प्रथमे আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ যি প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিল তাৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিম হয় মই এইখন স্কুলতে মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰথম ভৰি দিছোঁ এইখন স্কুলত সেই তেতিয়া মই মানে ইমানখিনিও জনা নাছিলোঁ জাষ্ট স্কুল আহিব লাগে কিন্তু মোৰ মানে লাইফৰ মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম এইটো মোৰ মানে শিক্ষা মন্দিৰ কিমান কিলোমিটাৰৰ পৰা আহিছিল আপুনি মই তেতিয়া আমি ইয়াত 2 নম্বৰ লাইন বুলি কয় তাতে মোৰ জন্মগ্ৰহণ ঢেলাঘাট চাহ বাগিচাৰ 2 নম্বৰ লাইন বুলি আছিলে সেই লাইনতে মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপৰা মই খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ তাৰপৰা মতে 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব হয় সেই তেতিয়া মই এটা জুলুঙা বেগত তেনেকৈ লৈ পেলাই আহোঁ আৰু সেইটো সময়ত ইয়াত 2 বেলা স্কুল হৈছিলে মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং মানে আফটাৰনুন শিফ্ট ৱাইজ আপুনি কোন শিফ্টত আছিল প্ৰথম শিফ্টটো আছিলে এইটো 12টা বজাৰ পৰা হৈছিলে তাৰপিছত ছেকেণ্ড শিফ্টটো নহয় প্ৰথমটো হৈছিলে মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা আৰু ছেকেণ্ডটো আছিলে আফটাৰনুন মানে 12টা বজাৰ পৰা হয় আপুনি মৰ্ণিং শিফ্টত আছিল প্ৰাথমিক মানে ক্লাছ 1টো আছিলে মানে 12টা বজাৰ পৰা হৈছিলে আৰু ছেকেণ্ড ক্লাছ 2টো হৈছিলে মৰ্ণিঙত হৈছিলে দুটাই আপুনি এনেকৈ মই ইয়াত মানে হেৰি কৰিছোঁ পঢ়িছোঁ আৰু এইটো মানে মোক মানে আজি ইমানেই ভাল লাগিছে যে আজি এইখন স্কুলৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পেলাই মই ওলাই গ'লোঁ তাৰপিছত মানে আজি এই পৰিস্থিতি মানে আমাৰ ভাল দিন আহিলেতো আজি এইখন স্কুলটো হাজবেণ্ডে বনাই দিছে আৰু দুয়োগৰাকীৰে স্মৃতি ইয়াত জড়িত আছে আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা মানুহৰ অভাৱ নাই কিন্তু এইদৰে যে এটা থিংকিং আপোনালোকে লৈছে যিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় য'ত আপোনালোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ প্ৰতি এটা চিন্তাধাৰা কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা গতিকে এই আলোচনাটো আপোনালোকৰ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল যে বিদ্যালয়খন এইদৰে সুন্দৰভাৱে বনাব লাগে বা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এই চিন্তাধাৰাটো ক'ৰ পৰা আহিলে আৰু কি আলোচনা হ'ল আপোনালোকৰ মাজত এইটো আলোচনাটো মই একেবাৰে গমেই নাপাওঁ কিন্তু ময়ো ভাবি আছিলোঁ যে এদিন মানে স্কুলখন যদি আমি বনাই দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু হাজবেণ্ডে মোক নোকোৱাকৈ তাৰ মানে ই কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে মই নিজে গম নাপাওঁ যেতিয়া মানে ভতিজাজনে কৈছে যে স্কুলখন বনাই আছোঁ মানে অন্তৰখন ইমানেই ভাল লাগিলে নহয় এদিন ছাৰৰ লগত গধূলি চাবলৈ আহিলোঁ মানে মই কৈছোঁ কোনখিনিত মই বহিছিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে আজি কেতিয়া গম পালে স্কুলটো আধা হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত সঞ্জয়দা কি ক'লে আপুনি কৈছে আৰু মানে ভাল লাগিছে আজি স্কুলখন নিজৰ ফালেদি বনাইছোঁ বুলি হেৰি যাতে মানে আমি যেনেকৈ কষ্ট সেইটো সময়তে ফেনো নাছিলে আৰু স্কুলখন মানে এইটো কিমান পুৰণা মানে কিমানে যে পঢ়ি গৈছে এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডৰ তাৰ ওপৰতো আৰু কিমান যে ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ ঘৰ মানে সেইটো মানে আমি স্মৃতি হিচাপে মানে ইয়াতে পঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মানে এইখন মানে সংৰক্ষণ কৰিম ভালকৈ বনাই দিম যাতে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভালকৈ ইয়াত বহি পেলাই পঢ়িব পাৰে আপুনি কোন চনত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে মনত আছে নেকি মনতে নাই ইয়াৰ পৰা কি মেছেজ দিব বিচাৰে যি কণ চক এটা কথা মানুহৰ এটা ভুল ধাৰণা থাকে যে চাহ বাগানত যিসমূহ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে তাত ভালদৰে শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা নাথাকে কিন্তু শিক্ষা প্ৰদানৰ কিমান ভালদৰে ব্যৱস্থা আছে মই নাজানো কিন্তু এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলায় তেওঁলোকে এই অঞ্চলটোৰ নাম উজ্জ্বল কৰিছে আৰু তাৰ মাজত আপোনাৰ আজি স্বামীও আছে গতিকে কি ক'ব আজি কি মেছেজ দিব বিচাৰিব শিক্ষা গ্ৰহণটো হৈছে যাৰ ইচ্ছা আছে স্কুলখন যেনেকৈ নহওক যদি ইচ্ছা আছে মনৰ ইচ্ছা আছে তাত যেনেকৈ নহয় স্কুলটো তাত পঢ়ি ওলাই যাব পাৰি কিবা স্মৃতি আছেনে মনত এইখন বিদ্যালয়ৰ কিবা মানে স্মৰণীয় মানে কথা কিবা মনত আছেনে
তেনেকৈ মোৰ নাই এতিয়ালৈকে স্মৃতি संजय दा किंवा असं नाही क्वेश्चन आपला নাই কোৱা এতিয়ালৈকে धन्यवाद। থেংক ইউ और ये थे मंत्री संजय किशन की पत्नी और दोनों ने यहाँ से शिक्षा दोनों ने लिया है। एक खास बात जो हमें जानकारी मिली और किस तरह का संजो कर रखने का प्रयास किया गया है और यह सोच जो रखा है मंत्री संजय किशन ने खुद के इनकम से खुद के पैसे से इस विद्यालय को किस तरह संजो कर किस तरह एक सुंदर बनाने का जो प्रयास किया है काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है और हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ मंत्री संजय किसान के जो घर है, जो पुराने घर जहां उन्होंने जन्म लेकर जहां से अपना जीवन आरंभ किया, फिर से उस घर में उपस्थित हूँ और घर का जो दृश्य है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहीं से मंत्री संजय किसान ने अपना जीवन शुरू किया था, यहीं संजय किसान का जन्म हुआ था और उनके बड़े भाई है मेरे साथ उपस्थित और एक बार फिर से मैं उनके पास जाऊंगा और थोड़ी बातें जानने की कोशिश करूंगा। एक बार नाम में आपका जो है सबसे पहले बोलने के लिए अनुरोध करूंगा। हमारा नाम जी महेश घटवार। महेश घटवार। पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं और मंत्री जी का बहुत सारा बात आपने कहा था। आज हम उनका जो प्राथमिक शिक्षा था जो एलपी स्कूल में जो उन्होंने पढ़ाई शुरू किया था उस बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। उस बारे में मतलब हम तो जितना तक जानते हैं उतना चीज नहीं है। बहुत ढेलाघाट एलपी यहाँ से हाँ जी बहुत कष्ट से पढ़ा है। कैसे पढ़ता था तब जब छोटा? ये यहाँ से कितना 1 किलोमीटर दूर होगा लगभग? हाँ 1 किलो तो होगा। 1 किलोमीटर। हाँ कैसे पढ़ाई करते थे उस टाइम? पढ़ाई तो मतलब आने जाने में सस्ती, हम लोग को साइकिल नहीं रहा। जी। हाँ BS साइकिल कुछ दे रहा उसका पिताजी। हाँ हाँ उसका पिताजी साइकिल की एक भाई लेता है तो एक भाई आता है, इसलिए मतलब बहुत दिक्कत से पढ़ा है, बहुत दुख से हमारा आंखें के सामने। जी। हाँ बहुत कष्ट हुआ। हाँ बहुत कष्ट किया है। हमारा अपना खून है ना, जब आने से हमारा गार्ड उड़ लेके हमारा घर जाता है, हमको नहीं छोड़ता है। जी। हाँ हमारा साथ बहुत अच्छा है। जो बचपन में जब वो एलपी स्कूल में जाते थे उस समय का कुछ जो बात है थोड़ा आप हमारे दर्शक को कहने के लिए आपको उस समय में मतलब कुछ खास बात जो हाँ मतलब उस समय हम लोग को दिक्कत बहुत रहा, साइकिल का, पढ़ा लिखा, खाना पीना देने का, ऐसे मतलब बहुत दिक्कत से पढ़ा। जी। हाँ अपना आँखी से देखा अपना बहन, हम लोग बहुत कष्ट किया, खोड़िया नहीं जाता रहा ना, इतना कुछ दुख लगता है। अभी वो नहीं है। कहाँ खोड़ी लाने जाते थे? मटापा गांव से खोड़ी लेके आता रहा है, उसी के साथ एक तो लोखी बोल के रहा, उसका साथी पढ़ा में बहुत अच्छा रहा, वो जब मर गया। हाँ बहुत कष्टों से बड़ा हुआ हमारा भाई, इसलिए हमको नहीं छोड़ता। चाय बागान का भाषा में ही आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज एक खास दिन लगे, खास दिन होबार कारणटा होছে जे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करी रहे, जे एलपी स्कूल में जे एलपी स्कूल में पढ़ी रहे वो स्कूलटा निजे टाका से निजे जेटा उपार्जনের धन टाका ওই টাকা से ওই স্কুলটাকে সুন্দর বানাবার একটা চেষ্টা করছে আর ওই স্কুলটা আজ ওপেনিং করি, তো এই বিষয়ে में কি বলবে তুই? তারপরে ওর बहुत शौक रहा है, माने प्राय ये ढेलाघाट में बहुत मंदिर माने सरस्वती स्थान बनाए के गए, उटा में 5 टका पैसा पकड़ ना रहे, किंतु हिम्मत रहे हाँ करी के आज माने बहुत खिनी करी के बिजरा गलक। ওই 1939 सन के ওই এলপি স্কুল তুইও পড়ি রহি হওয়া? না না মুই লেখাপড়া নিকে নাই পড়ি পড়াই। তো সঞ্জয় কিষান ওই স্কুলে পড়ি রহে, কিন্তু আজ ওই স্কুলটা সুন্দর করে নিজের টাকা শুনলি সুন্দর হয়, মুই চলক নাই পড়ে মানে বাক কিনলি 1 লাখ কিরকম লাগতে 50,000 এই যে এরকম পয়সা চলাবি। और भी लोग हैं और भी एक बुजुर्ग महिला है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। संजय किसान डांगरिया तो के लगे? मोर फूफू लगे। तो फूफू लगे? हाँ मोर फूफू लगे। और छोटू समय यहाँ से जात रहे जे प्राथमिक जे शिक्षा ले के लिए बा एलपी स्कूल में जे जात रहे, कितना दूर है? स्कूल सामने है एलपी स्कूल। हाँ 1 माइल। और समय के बाद गिला बोले है तोर
বল তো তোরা কিরকম ওই সময়টা রহে স্কুল যখন যাতে রহে এলপি স্কুল যখন যাতে রহে কিরকম রহে স্কুল যেতে 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 বুড়া হয়ে গেলে এখন নাই যাচ্ছে। ছুটির সময় তোরা নিজে পাঠাতে রহি নিজে পাঠাতে রহি। কি কিরকম রহে পড়ার সময় পড়া সব ঠিকই রহে সব। কষ্ট খুব করতে রহে। হ্যাঁ আজকে তোদের ঘরকে একটা বেটা আজকে একটা মন্ত্রী है কিরকম লাগত ঠিকই লাগছে। কি বলে के चाहती যদি संजय दा আমাদের চ্যানেল में তোকে দেখতে ধর তো তুই কি আগে বলবি আমাদের চ্যানেল के थ्रू ঠিকই আছে তো আলে 500 টাকা দিয়ে রাখলাম ওকে আলে 500 দিয়ে রাখি 500 টাকা দেলা ছোট ভাই তোরা पूरा मरम करते रहे মরম তো কোনো बात মনে है छोटू समय के बात मने है नहीं छुट्टी समय के तो उके कोनो बात मने है मुई खेला ली हो पीछे काम निकल गई खाना उके नहीं खेला ली। खूब खेलते रहे। हाँ बगल में वो काम जाते रहे खाना। अच्छा और ये बुआ है और उनसे भी हमने थोड़ी जानकारी ली बचपन की जो यादें हैं हमने थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की और हम फिर से एक बार उस विद्यालय में जाएंगे जहां मंत्री संजय किसान ने प्राथमिक शिक्षा आरंभ की थी और जैसा कि लगातार मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह जो मंत्री संजय किसान ने जो प्राथमिक शिक्षा जो एलपी स्कूल का शिक्षा जो उन्होंने शुरू किया था कौन से विद्यालय में किया था और ढेलाघाट प्राथमिक विद्यालय जिस विद्यालय को फिर से रिपेयरिंग कर एक सुंदर माहौल देने की कोशिश की गई है मंत्री संजय किसान के द्वारा और खुद ही आज यहाँ उपस्थित होकर क्या कहना है मंत्री संजय किसान जी का मैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले जो बचपन की यादें हैं मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि आपके घर में गया था और लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है एक साइकिल हुआ करती थी कभी आपके भाई लेकर जाते थे तो कभी आप लेकर जाते थे जो हमें जानकारी मिली तो उस समय की जो यादें हैं थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। ज़रूर लालन जी बहुत सारा याद बसे हुए हैं स्कूल पे तो बहुत सारा याद आ रहा है अभी आज पे जैसे कि तब ऐसा नहीं था। अभी जो बच्चा है वो बहुत सुंदर से अपना ड्रेस लगा करके स्कूल आती है तब हम लोग का ऐसा कोई ड्रेस नहीं था। हाफ पैंट एक पहन लेते थे कुछ भी कमीज पहन लेते थे और किताब लाने का हम लोग का पास कोई बैग नहीं था हम लोग हाथ में ही ऐसा बैग किताब लेकर के आते थे और जो भी हो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो मेरा शिक्षा गुरु था जलीराम दत्त जी और पुनाराम सेतिया जी इन दोनों की शिक्षा के वजह से आज मैं जो हूँ उन्हीं का वजह से हूँ और ऐसा है मेरा शिक्षा का पहला कदम मैं यहाँ से चालू किए थे और जो मेरा शिक्षा गुरु था जलीराम दत्त जी बहुत ही मतलब उनका शिक्षा का बीच में हमें जो उपदेश देते थे वो उपदेश मेरे को आज में भी बहुत सारा याद आते हैं कि सही में सर ने ऐसा बात बोलते थे जो अभी भी मेरा व्यक्तिगत लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है। तब सर जब बोल रहे थे तो मैं छोटा था मैं इस बात को शायद इतना गैर कर नहीं पाया हृदय से बात को मैं सोच नहीं पाया लेकिन अभी मैं हर एक चीज़ों का मैं उपलब्धि करता हूँ कि सही में सर ने जो भी बोला था बहुत ही सही था वो बातें और ये मैं यहाँ से मेरा शिक्षा जीवन में आरंभ किए थे और ऐसा बहुत सारा साथी है जैसे कि आसमान सुना हम एक साथ पढ़ते थे मैं इसी जगह पे मैं बैठता था और मतलब क्या बोलो बहुत सारा यादें बसी हुई है इस जगह पे और कभी हम लोग बहुत मतलब अपना बीच दंग भी हो जाता था कजिया भी हो जाता था फिर से हम लोग खेलते थे फील्ड जो था पूरा दिन हम लोग फुटबॉल खेलते फुटबॉल मतलब वो नहीं क्या बोलते वो रबा जो बड़ा टेंगा होता है ना वो टेंगा से हम लोग दिन भर फुटबॉल खेलते थे रबाब टेंगा जो है वो से हम लोग फुटबॉल खेलते थे और ऐसा बहुत सारा याद है जो कि हमें मतलब ये मेरा विद्या मंदिर है एग्जैक्टली तो ये विद्या मंदिर से मेरे को सारा कुछ
एक चीज़ आजकल देखा जाता है कि कानून कड़ा किया गया है, बच्चों को पिटाई नहीं होती, लेकिन उस समय अगर पिटाई ना मिलता तो शिक्षा नहीं मिलता था। तो पिटाई हुआ मेरा जालीराम दत्ता जी जो थे वो इतना पिटाई नहीं करते थे, कभी कान पकड़ लेते थे, कभी कुछ पकड़ लेते थे, लेकिन जो मतलब पूना सर था, पूना सर पूरा पिटाई करते थे। वो पिटाई करते करते पूरा मतलब वो पूरा लाल हो जाते थे पिटाई कर करके, और हम लोग का पैर में पूरा दाग बैठ जाता था पूरा पिटाई करके। हाथ में ऐसा हम लोग करते थे, वो पीटते रहते थे, हम लोग ऐसा हाथ को करते। मुर्गा भी बने होंगे। मुर्गा भी बने और भैंस का ऊपर ऐसा करके हम लोग खड़ा भी हुए। बरांडा में भी हम लोग को कान पकड़ करके ऐसा खड़ा होना पड़ा है। वो शिक्षा अगर नहीं मिलता, उस तरह का कड़ाई नहीं होती, तो आपको लगता है शायद आज संजय किसान ऐसा नहीं होता। एक चीज़ कहा जाता है कि बचपन का जो शिक्षा होता है या जो बचपन की जो यादें होती है, शायद ही जीवन में कभी वो प्राप्त हो। आप एक मंत्री है, एक श्रेष्ठ पद पर है, क्या लगता है फिर भी आपको कि वो बचपन का जो याद है या वो बचपन का जो समय है वापस मिल सकता है, आपको लगता है? ये तो कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो भी हो मेरा याद यहाँ में बसे हुए है। मैं दुर्भाग्यपूर्ण में चौबा समष्टि का विधायक नहीं बना, मैं तिनसिका का विधायक बना, लेकिन फिर भी ये अभी ऐसा बहुत लोग हैं जो संजय किसान को, आज का जो संजय किसान है, इस हिसाब से संजय किसान को खड़ा करने में काफ़ी लोगों का योगदान है, काफ़ी लोगों का सहयोग है, काफ़ी लोगों का आशीर्वाद है ये धेलाघाट बागान पे। अगर वो लोग उस समय पे मेरे को आशीर्वाद नहीं देते, मेरे को उस लोगों ने ऐसा सहयोग नहीं करते, तो शायद संजय किसान आज ऐसा नहीं हो पाता। बचपन जो होता है, जो एक पौधा जब लगाया जाता है तो सबसे ज़्यादा मेहनत होता है उसे बचाने में, उसे किस तरह उसे बढ़ाया जाए, उसे ज़िंदा रखा जाए। और यह बचपन जो होता है, किस तरह की आवश्यकता है जो यह पौधा चूँकि हम लगाते हैं, और यह जो शिक्षक है, शिक्षकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो पौधा लगाया जाता है, किस तरह उन्हें सींचने की ज़रूरत है ताकि आप जैसे लोग यहाँ से निकल कर आए? ज़रूर। ये जो बहुत ही 1937 का स्थापित ये स्कूल है, जो देश स्वाधीनता पहले से ये स्कूल बन चुका था, और यहाँ से बहुत लोग, कोई अभी डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बाहर भी है, इस स्कूल से पढ़ कर के गए हैं। और वही आज का ज़माना में देखा जाए तो ज़्यादातर वैसा मापी स्कूल में लोग पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन ये अच्छा बात है कि बागान के लोग अभी भी ये आसामीज़ स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अगर हम लोग चाहें तो इसी स्कूल से हम ऐसा मापी स्टूडेंट ज़रूर हम लोग निर्माण कर सकते हैं। मेरा छोटा भाई अभी यहाँ का शिक्षक है, बहन यहाँ की शिक्षक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वातावरण, ये परिवेश यहाँ में खड़ा करने के लिए हम सभी का बड़ा जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से ये स्कूल को थोड़ा सुंदर ढंग से मैं सजाया हूँ, लेकिन ये स्कूल का जो मैं सपना लेकर के सजाया हूँ वो तब साकार होगा जब यहाँ से कोई बच्चा कोई डॉक्टर बनेगा, यहाँ से कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, यहाँ से कोई बच्चा अपना समाज के लिए बड़ा कुछ कर पाएगा, तो तभी मेरा सपना वास्तवित होंगे। एक चीज़ मैं सभी से जानना चाहता हूँ, आपसे भी जानना चाहूँगा कि चाय बागानों के प्रति एक भ्रम रहता है कि जो चाय बागान के विद्यालय होते हैं वहाँ से अच्छी शिक्षा नहीं होने की वजह से वहाँ से अच्छे लोग जिस तरह का पद पर निकल कर नहीं आते, लेकिन यहाँ से कई लोगों का हमने नाम सुना कि कई श्रेष्ठ पद पर आज लोग हैं यहाँ। तो आज इंग्लिश मीडियम के विद्यालय के प्रति जो लोगों का सोच है, यह विद्यालय एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि इस तरह सरकारी विद्यालय से भी बड़े बड़े पद के लोग निकल के आते हैं। तो ऐसे व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप बागान का कोई भी स्कूल पे चला जाइए, आप ऐसा बहुत लोग मिलेंगे, जैसे कि बहुत लोग का हिस्टोरी मिलेगा आपको। और तिनसिका में कोई बड़ा डॉक्टर है, तिनसिका में कोई बड़ा इंजीनियर है, वो लोग का भी अलग आप हिस्टोरी देखोगे तो वो कोई ना कोई बागान से निकल करके वो बागान का स्कूल में पढ़ाई करके आज वो बड़ा इंजीनियर बना है या बड़ा डॉक्टर बना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बागान का स्कूल बहुत सही ढंग से तब भी था, आज भी है। हम लोग का ज़रूरी है कि उसमें परिवेश कैसा हो, उसका मतलब हम लोग कैसा बच्चे को हम लोग उसमें हम लोग अच्छा व्यवस्था कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाउन का बड़ा दामी वाला स्कूल में ही पढ़ने से बच्चा अच्छा आदमी बनेगा, ऐसा बागान में पढ़ करके आदमी नहीं हो सकता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ऐसा
कोई खास मोमेंट है क्या जो अभी भी याद आता है इस विद्यालय का, और अभी भी दिल को छू जाने वाला कोई ऐसा मोमेंट है क्या? ऐसा बहुत मोमेंट है, मैं क्या बोलूँ। बहुत सारा ऐसा मोमेंट है जो कि हम क्या बोलूँ, कभी हम लोग खाते थे स्कूल, कभी नहीं भी खा के आते थे, और तब ऐसा मिड डे मील का ऐसा कुछ भी नहीं था, तो फिर भी हम लोग पूरा दिन भर पढ़ते थे और कभी दंग भी हो जाता था। एक बात मेरे को थोड़ा सा याद है, वो बेचारा है नहीं, परमू एक लड़का था, दुर्भाग्यपूर्ण वो चल बसे, उनको कुत्ता ने काट लिया था, और कुत्ता का वो ये होने से वो अपना जीवन दे बसा। उनका साथ मेरा एक बार मतलब ये हो गया, तन बन हो गया इसी जगह पे कहीं पे, और मेरे को इतना तंग किया। मैं थोड़ा तब भी हूँ, अभी भी शायद हूँ, नहीं पता नहीं, मैं थोड़ा गर्म दिमाग का था, और उस समय में वो जो क्या बोलता है अंकों के लिए वो काटा कुंपस रहा करता था, वो काटा कुंपस में उनको मार दिया और पूरा यहाँ घुसा दिया था उनको, वो पूरा ब्लड निकल कर आया। बड़ा काफ़ी पिटाई पड़ा मेरे को, लेकिन मैं ऐसा कर दिया था, वो मेरा गलती था, मैं अभी भी वो गलती मैं मानता हूँ। वो मेरे को ऐसा कुछ तंग किया जो मैं मजबूरन उसको मतलब वो काटा कुंपस में मैं मार दिया। ये बात मेरे को अभी भी याद है, इसी जगह पे कहीं पे। एक चीज़ आपको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, बच्चों को आपने गिफ्ट जरूर दिया है, लेकिन साथ ही और एक व्यक्ति को आपने एक सरप्राइज़ दिया है और उन्हें गिफ्ट दिया है अपने पत्नी को, और एक ही स्थान पर जो उन्होंने भी हमें दिखाया है, यहाँ पे ही पढ़ा करती थी, और आधा विद्यालय जो रिपेयरिंग का काम था आधा संपूर्ण होने के बाद उन्हें पता चला, और आज वो इमोशनल हो गई हमारे सामने। तो क्या कहेंगे, आज पत्नी भी यही पढ़ती थी, आप भी यही पढ़ते थे, तो इस तरह का एक सुनहरा आज मौका है, एक साथ आप लोग इस विद्यालय को एक नया रूप दे रहे हैं, तो एक इमोशनल यह मूवमेंट है, तो क्या कहेंगे? जी, मैं एक्चुअली मेरा पूरा परिवार और साथ में जो हम लोग एक साथ पढ़े हैं, आसमान है और कोई है, मेरा यहाँ बहुत सारा साथी है, शायद वो स्टीफन आए इधर, ये मेरा साथ का है, ये लोग बूढ़ा हो गया, लेकिन ये हम लोग साथ में पढ़े। बैठो, और कोई है क्या? और कोई हो सकता है जो कि हम लोग एकदम एक साथ में हम लोग पढ़ाई किए हैं, और मैं इन सभी का की हो करके हम सभी हो करके ये स्कूल को छोटे बच्चों को लिए हम लोग अर्पित करते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। मैं आगे भी जाऊँगा, जहाँ टेंगा बॉल आप खेलते थे वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन थोड़ा इनसे भी बात कर लूँ। याद है आपको वो जो एलपी स्कूल में जब एक साथ पढ़ते थे वो समय याद है आप लोग? याद तो है से पढ़ने के समय में हम लोग का सार जो रहा ना, वो थोड़ा कोई बदमाश काम करने से पिटाई पूरा देता रहा। पिटाई पूरा? हाँ, वो मने है। और ऐसे तो पढ़े। क्या लगता है आपका पिटाई कम हुआ क्योंकि संजय दा मंत्री हो गया, आपका पिटाई में कमी हुआ आपको लगता है? सजाए तो ढेर मिला है हम लोग को, कान पकड़ने के लिए, कभी मुर्गा बनने के लिए, ऐसा मिला है। ऐसा कुछ याद है मुर्गा जब बने थे आप लोग, कुछ समय उस समय का कुछ बात याद है क्या? उस समय के तो बात याद नहीं है सर। हाँ, जो खाली मुर्गा बना है वो तो जानता है हम लोग। हाँ, आप भी यही पे पढ़ी हो? जी सर। मेरा परिवार आपसे फिर से जानना चाहूँगा, एक अच्छा एक गिफ्ट मिला आपको, इमोशनल एक मोमेंट है, क्या कहेंगे एक बार? हाँ, इसके लिए मैं একতাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে আজি এইখন স্কুলৰ পৰা আমি ওলাই পেলাই আজি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে এইখন স্কুলৰ পৰা আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু আজি এইখন স্কুলক আমি নিজৰ কিবা এটা পুঁজি দি পেলাই বনাই দিছোঁ, যে সেইটোলৈ বেছি হেপী মানে। मैं आगे भी आपके साथ जाऊंगा, आपसे भी थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। क्या कहेंगे इस समय को लेकर आपका क्या मैसेज रहेगा? बहुत ভাল লাগিছে আজি নিজকে। আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ হয়, আৰু তেখেতে অলপ মোতকৈ অকণমান বয়সত ডাঙৰ বাৰু, কিন্তু আমি সেইটো সময়ত একেলগে আছিলোঁ, একেটা বেচতে আছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে সেই সৰুৰ পৰাই আমাক এটা মৰমৰ বা এটা হেৰিৰ আছিলে, মানে আমাৰ ধৰক কি বুলি কয় গাৰ্জেন নিচিনা তেনেকৈ ধৰণৰ এটা ব্যৱহাৰ আছিলে আমাৰ লগত, আৰু প্ৰতিটো সময়ত আমি তেওঁলোকৰ লগত মানে এটা ভাল এটা হেৰিয়াত আমি পাইছিলোঁ। मैं आपके साथ थोड़ा आगे जाऊंगा, और जो टेंगा बॉल आप खेलते थे या जो बाहर का जो मैदान था, क्या है याद है? थोड़ा इस बारे में भी आपसे जानकारी लूँगा मैं। जी,
ये ग्राउंड जो था उस समय यही मेरा मैदान है जो हम लोग पूरे दिन भर यहाँ हम लोग खेला करते थे। मेरे को अभी भी याद है। मतलब पूरा वो टेंगा बोलते हैं, बड़ा रबब टेंगा जो होता था फुटबॉल के जैसा, उसी टेंगा में हम लोग मतलब बारिश हो चाहे धूप हो कुछ भी हो ऐसा परिस्थिति हम लोग को मतलब कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं होता था। हम लोग सारा दिन पूरा बारिश में भी हम लोग खेलते थे, पूरा धूप में भी हम लोग खेलते थे। फेवरेट स्पोर्ट्स क्या था आपका? नहीं ऐसे तो मैं फुटबॉल मैं खेलता था काफ़ी, मैं इंटरेस्ट था। हम लोग मतलब टीम करते थे, बाहर जाते थे हम लोग खेल कूद के लिए। मैं इतना बहुत मतलब खिलाड़ी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खेल में मैं बहुत दिलचस्पी था। और मैं अपना ये सुबह यहाँ से करीबन 3:30-4 बजे मैं साइकिल मार करके मैं तिनसिका जाता था। तिनसिका जा करके तिनसिका में वो जो कोजुजान फील्ड है उसमें पूरा मैं रन करता था। उसके बाद मैं वो हरेन सेतिया जी थे उनके से मैं कुंफू सीखता था। तो ऐसा मैं थोड़ा खेल जगत में थोड़ा रुचि था। एक चीज़ मुझे जानकारी नहीं मिली, कौन सा साल होगा जब आपने यहाँ शिक्षा आरंभ किया था? वो तो बोलना मुश्किल जगह, फिर भी वो मेरा सब जन्म जब 70 पे हुआ 75 के आसपास, तो वैसे ही माफी 76-75 ऐसा माफी में मैं यहाँ पे ज़रूर पढ़ा होगा, 76 होगा। एक चीज़ और रोचक जानकारी मिली आपके बड़े भाई से, हमने जो जानकारी लिया कि बचपन में यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप लकड़ी लाने जाते थे बागानों से, तो उस बारे में मैं थोड़ा आपको शेयर करने के लिए। सही में मैं हम लोग का जब ये अनरोलिंग का दिन होता है, जो ये बागान को कलम काट दिया जाता है, तो बागान का जो पेड़ होते हैं उसको हम लोग ठंडा दिन में तो ऐसा बहुत ही तकलीफ था मेरा घर में, सभी का घर में ठंडा का लिए अभी जैसा हम लोग बहुत बड़ा ये कापड़ ले पाते हैं वैसा तब था नहीं। तो हम लोग ठंडा भगाने के लिए ये बागान का ही पेड़ जो काट जाते थे उसका डाली लेकर के हम लोग घर जाते थे और वो करते। ये नहीं, मेरा यहाँ से बहुत दूर मोटापुंग बील है, मोटापुंग बील से हम लोग लकड़ी लेकर के आते थे, कांदों में लकड़ी लेकर के आते थे। जो इतना लकड़ी लाते थे, ये जो कांदा है ये पूरा मतलब काला हो जाता था। मैट्रिक का समय का बात आपने पहले भी शेयर किया था, और इन बच्चों को वह मैसेज मैं एक बार आपको देने के लिए अनुरोध करूंगा। जब आपने एक चाय पकौड़ी का या इस तरह का दुकान खोल के खुद ही बर्तन धोकर आपने पढ़ाई की, वह कितना कठिन मोमेंट था, और आज के बच्चों को उस विषय को लेकर क्या शिक्षा लेना चाहिए, कितना क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उस पर? ना देखिए, परिस्थिति जैसे भी हो, लेकिन वो परिस्थिति में अपने आप को मतलब शामिल करके जो भी पैताबान है वो पैताबान को ग्रहण करते हुए एक्चुअली हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। वैसा था तब मेरा बहुत ही आर्थिक व्यवस्था एकदम बिल्कुल कुछ था नहीं, और मैं पढ़ाई भी करना था, घर को भी देखना था। तो उसी समय में ये जो बागान का जो कैंटीन है, वो कैंटीन को मैं मैनेजर से बात कर करके वो कैंटीन को मैं लिया, कैंटीन में चलाया। सही में मैं करीबन 15 केजी आटा से मैं पूड़ी बनाता था, 15 केजी वो मटर लेकर के मैं घुगनी बनाता था। और वैसा माफी मैं करीबन 2:30 बजे मैं काम करता था। और मेरा साथ एक साथी था, उनको बुलाता था दुलोमर लाइन से मदन करके वो आते थे। वो करीबन 3 बजे रात को आते थे, और सुबह 5 बजे से पहले हम लोग अपना ये पूड़ी मटर ऐसा सारा बना के रेडी कर देते थे। और 5-6 बजे फैक्ट्री का लोग जो सारा रात काम करते हैं वो लोग 5-6 बजे खाने के लिए आते थे, और उनको मैं खाना खिला देता था। बचपन में चूँकि आपके एक भाई आज नहीं रहे, लेकिन उनका जो रास्ता दिखाया गया था, एक रास्ता जो गीत गाने का शौक़ आपका भी है, तो ये जो बचपन से शौक़ था गाना गाने का, या फिर बड़े होकर आपने ये शौक़ आपका हुआ? देखिए, मेरा पूरा घर ही मतलब एक वातावरण था ये का, हाँ चला जाएगा। तो मेरा बड़ा भाई शंकर किसान अच्छा गाना गाते थे, और मेरा उसी से गाने के लिए मेरे को प्रभाव ये मिला, तो उसी के साथ मैं ऐसा गाना गाने के लिए कोशिश किया। जी धन्यवाद। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो विद्यालय है, विद्यालय का पूरा माहौल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह का। और चाय बागान के मैनेजर मेरे साथ है, मैं उनसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा। एक जो शिक्षा अनुष्ठान है, आज एक सुंदर रूप दिया गया है आपके बागान में, क्या कहेंगे? ये धन्यवाद है हमारे मिनिस्टर जी को, जो हमारे बागान के
हमारे बगान के रहने वाले थे वो। इन्होंने जितना अच्छा ये सब किया है, धन्यवाद मेरी तरफ से उनको, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छा हुआ है हमारे बगान के बच्चों के लिए, एक साफ़ सुथरा स्कूल तैयार हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री जी का। जी धन्यवाद। और ये थे मंत्री संजय किसान तथा चाय बागान, जो ढेलाघाट चाय बागान के जो मैनेजर है। हमने उनसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की और यह जो विद्यालय है, विद्यालय का जो इतिहास रहा है और इस बारे में हमने जो संजय किसान की जो यादें जुड़ी हुई है, हमने थोड़ी आपको जानकारी देने की कोशिश की। हम और एक विशेष कार्यक्रम लेके हम फिर से उपस्थित होंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग में समाचार।